Hello students, today we will do group 16 elements part 1. In case you have not subscribed the channel yet, please do subscribe the channel. So let's start with group 16 elements. Group 16 element consists of 5 elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. This group is known as chalcogens. Chalcogens mean ore forming. So they are found in copper minerals. So that's why they are known as chalcogens. So now occurrence. Oxygen is the most abundant of all the elements on earth. 46.6% by mass on earth crust and 20.946% by volume in dry air. Now abundance of sulfur in the earth crust is only 0.03 to 0.1%. In combined form, sulfur exists as sulfate or sulfide, and even traces of sulfur occur as hydrogen sulfide in volcanoes. Organic materials also contain sulfur like egg, protein, garlic, onion, mustard, hair and wool. They all contain sulfur. Now this selenium and tellurium, it is also found as metal selenides or tellurides in sulfide ores. Now this polonium, which is a radioactive element, it occur in nature as a decay product of thorium and uranium minerals. सीबीएसई में ये जो टॉपिक है ये कम पूछा जाता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कभी भी अगर पूछ लिया जाए विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, द आंसर विल बी ऑक्सीजन. सो नेक्स्ट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Their electronic configuration is Ns2Np4. It means they are just 2 electron short of noble gas configuration. Now if you move down the group, you can see कि atomic और ionic radii जो है वो increase होता है because effective nuclear charge decreases. As a result of this, ionization energy decreases क्योंकि it will be easier to remove electron from a larger size atom. उससे क्या होगा, जितनी कम एनर्जी लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होंगे. सो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. सो इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फर जो कि टॉप पर आते हैं ग्रुप में, दे आर नॉन मेटल्स, क्योंकि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो अच्छे जो है उनमें ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा. देन दिस सेलेनियम एंड टेलुरियम्स आर मेटलॉइड्स while polonium is radioactive metal and its half life period is 13.8 days. और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि अगर आप पोलोनियम को मान लीजिए 1 ग्राम कहीं रख देते हैं तो 13.8 डेज बाद वो आधा ग्राम हो जाएगा बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव, इट इज कन्वर्टिंग इनटू सम अदर एलिमेंट. सो नेक्स्ट इज कि डाउन द ग्रुप अगर हम देखते हैं तो आई हैव टोल्ड यू कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो इसकी वजह से क्या होता है, साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है and van der Waals forces of attraction increases. As a result, melting and boiling point of these elements increases down the group. Similarly, atomic और ionic radii बढ़ने से electronegativity decrease होती जाती है when we move from oxygen to polonium due to increase in atomic size. So next is
कंपेयरिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप 15 और 16 की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे। ग्रुप 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं और ग्रुप 16 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं मतलब ऑक्सीजन फैमिली को। सो अगर आप साइज को कंपेयर करते हैं यू विल फाइंड कि जो ग्रुप 15 है उसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16। और साइज के हिसाब से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि जितना छोटा साइज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ग्रुप नंबर 16 का साइज छोटा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बट क्या हुआ, ऐसा नहीं होता है। यहां पे वी हैव एन एक्सेप्शनल केस कि ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। सो रीजन इज इफ यू see their electronic configuration, group 15 is having electronic configuration ns2 np3 और ns2 का मतलब है s पूरी तरह से completely filled है और np3 का मतलब है p is half filled, while in group number 16 it is having configuration ns2 np4। और इसी वजह से क्योंकि ग्रुप 15 have extra stable half filled p orbitals, it is difficult to remove electron from 15th group elements, so which result in their higher ionization enthalpy than group 16. So electron gain enthalpy, पहले आपको बताया था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है उतनी आसानी से जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो नीचे मूव करते हुए साइज बढ़ता जाता है। जब साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज तो उससे क्या होगा, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो एटम जब आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। सो इस हिसाब से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका साइज जो है वो छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी गेन एंथैल्पी इट शुड बी मोर नेगेटिव देन सल्फर, बट दिस इज नॉट द केस। बल्कि क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज लेस नेगेटिव देन सल्फर, जैसा कि हमने फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में देखा था कि फ्लोरीन की भी लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन से। तो सिमिलरली ऑक्सीजन इज हैविंग लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। नाउ रीजन इज सेम एज दैट ऑफ फ्लोरीन। Due to extremely small size of oxygen, it has inter-electronic repulsion और इसी inter-electronic repulsion की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को easily accept नहीं कर पाता है। So next are their physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये आता है कि ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी, ये एलोट्रॉप्स दिखाते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब है अलग अलग तरह की एलिमेंटल स्टेट में रहना। जैसा कि आपको पता है कि जो कार्बन है उसकी एलिमेंटल स्टेट जो है ग्रेफाइट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। तो ये दोनों जो है दे आर एलोट्रॉप्स। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये आता है कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड गैस। O2 डायएटॉमिक का मतलब है दो एटम्स इकट्ठे रहते हैं एक मॉलिक्यूल में एज O2। जबकि अगर आप दूसरे मेंबर्स की बात करें, सल्फर की बात करें, सिलेनियम की बात करें, टेल्यूरियम की बात करें, दे एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल और वो सॉलिड होते हैं। ऑक्सीजन इज अ डायएटॉमिक गैस व्हाइल अदर आर ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड्स। तो इसका रीजन पूछ लिया जाता है तो रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है
उसका छोटा साइज होता है। तो उसमें जो है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो होती है बहुत इफेक्टिव होती है, तो इट कैन एबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। जबकि दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो ओवरलैपिंग इज डिफ्यूज, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड उतना इफेक्टिव नहीं होता, तो वो नहीं बनाते हैं। जबकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके केस में दे हैव सिंगल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन ओ सिंगल बॉन्ड। तो इनमें सिंगल बॉन्ड आसानी से बन जाता है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइल सल्फर या अदर एलिमेंट इज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसका जो है आंसर यू विल राइट कि ऑक्सीजन कैन एबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड वाइल इन अदर एलिमेंट ई सिंगल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। अब एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि जो सल्फर है या दूसरे एलिमेंट्स की भी अगर बात करें ऑक्सीजन को छोड़ के, दे हैव मोर टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। कैटिनेशन का मतलब होता है एक एटम दूसरे सिमिलर एटम से जुड़ जाता है। जैसे कि कार्बन में कैटिनेशन होती है, कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है, दूसरा अगले कार्बन से जुड़ जाता है। ऐसी सल्फर जो है उसकी मोर टेंडेंसी है, तभी तो वो S8 बनाता है, एक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसका भी रीजन जो है वो ये है कि ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है इट इज वीकर देन सल्फर सिंगल बॉन्ड। तो और ये जो है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वीकर क्यों होता है, अगर कभी इसका रीजन पूछ लें तो आगे रीजन भी है कि दे ड्यू टू मोर रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन एटम का जो है साइज छोटा है, तो उसमें जो रिपल्शन होती है वो ज्यादा होती है, तो इसी वजह से जो ओ बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड वो वीक होता है। और यही रीजन है कि सल्फर हैज मोर टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन देन ऑक्सीजन बिकॉज सल्फर सिंगल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ओ बॉन्ड। सो नाउ नेक्स्ट इज, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार ये पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, जबकि इसका आंसर जो है मैं पीछे ही डिस्कस कर चुकी है, लेकिन फिर भी आपको ये नया क्वेश्चन दिखेगा, चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसे। ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है, जबकि S8 या किसी और एलिमेंट का नाम ले लें इस ग्रुप के, वो सॉलिड है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन वही है कि ऑक्सीजन जो है इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि जो सल्फर है वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसका साइज ज्यादा होगा, तो वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर इन केस ऑफ सल्फर, जिसकी वजह से सल्फर जो होगा इट विल बी अ सॉलिड। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये -2 भी दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में d ऑर्बिटल में ले जाएं, तो अब आप देखेंगे सेकंड वाली फिगर में कि इसमें सेकंड वाले ऑर्बिटल्स में कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दे कैन शो +4। और अगर s ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएं और s का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाए d में, तो इट विल शो +6। पर एक चीज यहाँ पे आप जरूर नोट करिएगा, +6 होने के लिए s ऑर्बिटल का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखिए, अभी एक पॉइंट आएगा उसमें मैं बताऊंगी। नाउ इससे ये पता लगा कि ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट, -2 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं एंड +6 भी दिखाते हैं। So now in oxidation state we'll discuss कि down the group stability of +6 oxidation state, +6 मतलब वो वाला oxidation state जिसमें s orbitals के इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। एंड stability of +4 oxidation state increases down the group। इसका रीजन जानने के लिए आप दोबारा से उस पॉइंट पे आइए जहां पे मैंने ये कहा था कि +6 के लिए s के इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर होंगे एंड दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब क्या होता है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जो हायर एलिमेंट्स आते हैं
हायर एलिमेंट्स में एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है और जो एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं इस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से दे डू नॉट गेट अनपेयर्ड एंड पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो +7 6 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। तो ये जो हायर एलिमेंट्स होते हैं इनमें या तो +6 होता नहीं है या कभी कभी अगर कोई कंपाउंड मिलता भी है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसका जो रीजन है कि एस ऑर्बिटल्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना होना, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से 2 कम आता है, मीन +6 नहीं दिखाएगा, वो +4 दिखाएगा, मैक्सिमम वो +4 दिखाएगा, या फिर इससे नीचे वाला अगर देखें +2 भी होता है उसके अंदर। तो इसका रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में in case of higher elements these s orbital do not participate in bonding. So अगर हम देखते हैं कि +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को, इनकी जितने भी कंपाउंड्स आप देखेंगे दे आर कोवलेंट इन नेचर। क्यों होते हैं कोवलेंट? बिकॉज +4 या +6 में 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसलिए दे प्रेफर टू फॉर्म कोवलेंट मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। फ्लोरीन के साथ अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के साथ तो वो +2 दिखाएगा क्योंकि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन जो है, वैसे भी आपको पहले भी बताया था कि जो फ्लोरीन है वो -1 ही शो करता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो अगर कभी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा तो +2 दिखा देगा, अदरवाइज ऑक्सीजन जो है किसी भी कंपाउंड में -2 दिखाएगा या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। कभी कभी वैसे आप देखें -1 और -½ भी मिल जाते हैं पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड्स के केस में, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो इसका रीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देन आता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल्स ही नहीं होंगे इट विल नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, तो इस वजह से +4 या +6 नहीं दिखाएगा। नाउ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी हमने इसके बिहेवियर के बारे में, जो ये इसके ग्रुप के मेंबर्स दिखाते हैं ना, उनसे थोड़ा सा अलग दिखाता है, अलग तरह से बिहेव करने लग जाता है ये, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर हम यहाँ उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं सो दैट हमें याद रहे अच्छे से। सो इसका रीजन क्या आता है, व्हाई ऑक्सीजन शो दिस एनॉमलस बिहेवियर? तो रीजन आता है इट्स का स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो सेकेंड रीजन आता है वो आता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और इस वजह से इसने काफी सारी ऐसी चीजें करी जो बहुत ही एनॉमलस थी, उनमें से एक दो देख लेते हैं दोबारा से। सो पहली आती है ऑक्सीजन जो है, ड्यू टू दिस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इट exist as a diatomic molecule, while other element of group 16 they exist as octaatomic molecule. Second is ऑक्सीजन जो है गैस है, जबकि दूसरे एलिमेंट जो है वो सॉलिड है। नाउ ऐसे ही जो वाटर है वो लिक्विड है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वो एक गैस है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है 3 ही केसेस में बनता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में। सो नाउ वी विल टेक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट एक चीज आई वांट टू शेयर विद यू, वो ये है कि
टॉपिक करते टाइम, ये वीडियो देखते टाइम इन केस आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए नीचे, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये समझ नहीं आया और मैं कोशिश कर सकूं आपकी वो जो क्वेरी है या जो आपका वो जो डाउट है वो दूर कर सकूं। तो आप बिना झिझक के आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। आई विल पर्सनली आंसर द कमेंट। सो अब हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो ये जो टॉपिक हमने किया इसमें बहुत जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है रीजनिंग से रिलेटेड। सो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अकाउंट का मतलब ये है कि यू हैव टू गिव द रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो जैसे ये ऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड। तो अब आप ये आंसर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, while sulfur exists as octatomic molecule. So it will have a higher या stronger van der Waals forces of attraction. Now second question, ionization enthalpy of group 16 is less than that of group 15. तो इसका जो रीजन था मैंने आपको बताया था, ग्रुप 15 के अंदर दे हैव स्टेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, दे हैव स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। सो उन केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप 15 में ज्यादा होती है, इस वजह से ग्रुप 16 में कम होती है। Next is oxygen exists as diatomic molecule, while other elements of group 16 exist as octaatomic molecule. Oxygen diatomic molecule क्यों है? Because it can able to form p-pi bond, while other elements don't. Other elements have stronger single bond. And next is water is a liquid and H2S is a gas. Water is liquid because of formation of intermolecular hydrogen bonding. So next question is stability of +6 oxidation state decreases and +4 increases down the group. तो अब आपको आंसर पता है, due to inert pair effect. Next is electron gain enthalpy of oxygen is less negative than that of sulfur. तो इसका आंसर आई थिंक कि अब आप आंसर कर सकते हैं। यस, तो आंसर होगा बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन इट हैज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सो डू नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली, सो हैविंग लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy. Next is sulfur has greater tendency for catenation than oxygen because sulfur single bond is more stronger than OO single bond. Because in oxygen we have lone pair repulsion due to its small size. तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको अच्छे से करिए, इस टॉपिक को अच्छे से करिए, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।